الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر ایک ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم سلیم علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے آنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اور نقش نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے, ارے میں تجھے دیکھا کروں اور تو مجھے دیکھا کرے. اور سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان اس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ, مردہ ہے وہ دل, اس میں کوئی جان نہیں. اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ انصاف کی فطرت پہ نہ نوری ہے. آپ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں جلسے کا اہتمام آیوجن کر کے آپ نے بہت اچھا کیا. کچھ دین کی باتیں آپ نے سنی, چونکہ موقع تو لوگوں کو ملتا نہیں, کسان ہے, مزدور ہے, کام کرنے والے کاروبار والے ہوتے ہیں, تو دل میں بات نہیں ہو پاتی, اس لیے جلسہ رات میں لوگ سجاتے ہیں تاکہ کچھ باتیں سیکھنے, کچھ سننے, کچھ سیکھیے. جلسہ بھولنے کی جگہ نہیں, جلسہ سننے کی جگہ. اور یہ عرس مقدس کا یہ کون 64واں سال حاجی گوہر علی شاہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی, اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ولی کے دربار میں جب بھی جانا تو دل کو سنبھال لینا, ولی کے پاس جانا تو دل سنبھال کے جانا, اور علماء کے پاس آنا تو زبان کو سنبھال لینا. اور کسی محفل مجمع میں جانا تو آنکھ کو سنبھال لینا, کہیں مہمان جانا تو ہاتھ کو سنبھال لینا, کامیاب ہو جاؤ. اس لیے ضروری ہے, آج علماء کرام دیکھتے ہو, انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جلسہ جلوس دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے. ان لوگوں نے جو محنت کی ہے آپ قیامت تک حق ادا نہیں کر سکتے. بچپن میں گھر چھوڑا, شادی ہو گئی, بال بچہ, بیوی چھوڑ کے آپ کے علاقے میں آپ کے مسجد میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں. تنخواہ کیا دیتے ہیں آپ؟ 8,000 7,000 9,000. کیونکہ کیوں دیجئے گا تنخواہ مولانا کو؟ آپ غریب ہیں, کہاں سے لائیے گا؟ موبائل میں ریچارج 28 دن میں 300 دے دیجئے, لیکن مولانا کے ختم نہیں دیجئے گا. یاد رکھو مسلمانوں, یہ جو رمضان میں تراویح سن رہے ہو, یہ میک سے جو نعت نبی سن رہے ہو, جو جلسوں کے جو خوبصورتی دیکھ رہے ہو, ربیع الاول کے جلوس محمدی دیکھ رہے ہو, 11ویں کا فاتحہ دیکھ رہے ہو, ان علماء نے ٹفن میں کھا کے, چٹائی میں سو کے, گھر کو چھوڑ کے آپ کے بال بچوں کو پڑھایا. آج آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی جو قرآن لے کے بیٹھی ہے نا, یہ علماء نے محنت کی ہے, تب جا کے کام آیا. خدا کے واسطے علماء کی عزت ہونی چاہیے. آج رمضان میں دیکھ رہے ہو لوگ افطاری لے کے بیٹھتا ہے, دھیان میک کی طرف, مولانا کب آسان دیں گے. یہ بھی طریقہ نہیں ہے. علماء بیٹھے ہم سے بڑے بڑے, کیلنڈر چھپتا ہے رمضان کے لیے, مولانا لوگ چھاپتے ہیں مدرسے والے محترم لوگ کے 5:55 میں ایسی افطاری کرنا ہے, آج 5:04 میں سحری ختم ہے. یہ ٹائم ٹیبل چھپا ہوا رہتا ہے, آپ کے گھر میں کیلنڈر دے دیا جاتا ہے, لیکن ہائے رے مسلمان, کیلنڈر نہیں دیکھنا نہیں جانتا. ہم لوگ سے پوچھتا ہے جھارکھنڈی بابا آج کیا بجے افطاری کریں گے؟ بولا 8 بجے کر لو. کیلنڈر میں نہیں دیکھتا. مجھ سے پوچھتے ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کہاں کیا کر رہا تھا؟ بول کھیت میں جا کے کود رہے. اچھا ماحول سحری اور افطاری اذان سے مطلب نہیں ہے, سن لیجئے. اذان کے لیے
शहरी का इफ्तारी के लिए अजान नहीं होती है, नमाज के लिए होती है, लेकिन अमूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम में दे दी जाती है। आप शहरी इफ्तारी लेके बैठे मगरिब इफ्तारी लेके बैठे और मैच से अजान की आवाज सुनोगे तब इफ्तारी करोगे, हो सके मगरिब के टाइम में मौलाना बेहोश हो जाए तब इफ्तारी नहीं करोगे। इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। फजर में शहरी के टाइम में जब तक अजान नहीं होगी तब तक शहरी करेंगे, ये क्या दस्तूर है? अगर अजान के टाइम में मैच खराब हो जाए, लाइन चली जाए, बत्ती खराब हो तो क्या सुबह तक खाओगे? इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ। इसीलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। इसलिए कि वलियों के दरबार में आना चाहिए। दुआ करो रब से, वसीला है। डॉक्टर शिफा नहीं देता। मैंने एक आदमी से पूछा कि आप 15 दिन से गए थे, कहाँ थे? कहा हजरत हम गए थे दिल्ली, नहीं जाते तो मर जाते। बोले क्यों? बोले दिल्ली गए तो बच गए, इलाज हुआ बच गए। बोला मारने वाला अल्लाह, बचाने वाला अल्लाह, ये दिल्ली में कौन है तुमको बचा दिया? अकेला यही है ना। तो शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला, मुराद पूरा करने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती करोड़ों की तकदीर थी। ये मजार के ज़ियारत करो मर्दों के लिए, औरतों का हुक्म नहीं है मजार में जाना। औरतें मजार के अंदर नहीं जा सकती है, वो ना मजार के नाम पे घर से निकल सकती है, ना मजार के नाम पे सफर कर सकती है। आजकल तो औरतें मजार के लिए बदमुश, नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत कमर में दर्द बा, माथा टटल बा, मजार जाइएगा चाची? हाँ बेटा टोटम बैठ के चले जाए। मजार औरतों के लिए नहीं मेरी माँ बहन। तो अपने घर में अच्छी लगती घर में रहो, कुरान की तिलावत करो, घर में सजदा करो, शोहर की इज्जत करो, अपने पर्दे का ख्याल करो। आपका बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, उठना बैठना ना, टोटल सर से पांव तक औरत पर्दा ही पर्दा है। और वही एक औरत के गोद में जब बेटी पैदा होती है तो रहमत बन के आती है। वही बेटी जब बीवी बनती है तो रोशनी शोहर के लिए बनती है। वही बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वही बेटी जब दुआ को तराज उठाती है तो दुआ में गारंटी हो जाती है। वही माँ का चेहरा बेटा देखता है तो हज का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ का चेहरा देख के निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आप जब एक माँ है तो माँ का हक अदा करो। आपके कदम में आपके बेटे के लिए जन्नत है। आपको न बाजार जाना है न मार्केट जाना है। अभी देखिएगा 15-20 रमजान होते होते बाजार का चक्कर मत पूछिए, भीड़। एक दुकान में 5 मर्द है तो 45 औरतें, में जाम, पता नहीं क्या काम। शोहर के खरीदा कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने जाएगी। एक दिन जाएगी खरीदने, दूसरे दिन पास करेगी, तीसरे दिन घुमा देगी। लेकिन पिपरा कनक के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ के माँ बाप सब ठीक ठाक है। इन सब बात सिवान के उस बात की बात। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। ईद के रात है, चांद नजर आ गया। पूरे मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाने लगे। सब लोग खुशियों के गीत गाने लगे, तराने गाने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अपने घर में आए, अपने माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए। कहा माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है, लोग सुबह निकलेंगे नहा धोके, बदन पे नया कपड़ा होगा, मदीने की गली होगी, लोग अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ खुशी मनाते जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा कपड़ा और नहीं है, तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएगा? फातिमा सुनने के बाद आंखों में आंसू। ए मेरे लाल तू आराम कर, तेरी मां इंतजाम करेगी। और करो क्या हुआ?
और मेरे दोस्त चुपचाप रहिए, मुझे पता है आप लोग सुनने मुझको कम, देखने ज्यादा है, मुझको पता है। वरना ऐसे ऐसे खतीब बैठे स्टेज पे, ऐसे ऐसे मुकर्रिर हैं जो घंटों घंटा पूरी जिंदगी में 10 गो जलसा मत सुनिए, 20 जलसा मत सुनिए, एक जलसे में सुन लीजिए, एक ही मिलाद में सुनिए, या तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुन लेना चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। एक तकरीर में 10 मिनट की गुफ्तगू को सुन लोगे ईमान से, दिल से, तो चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। तो बीवी फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन सामने खड़े हैं, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के टाइम, इशा का टाइम आया, हसन हुसैन गए, माँ अब तो दुकानें बंद हो गई होगी माँ, अब तो मार्केट बंद हो गया होगा, अब तो बाजार बंद हो गया होगा माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा, हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू अपने घर में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो मेरी माँ बने, मदीने के तमाम औरतें सो गई, तमाम बच्चे सो गए, तमाम और लड़कियां सो गई, तमाम बूढ़े सो गए, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोई। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है। शाम रात है, सुबह ईद होने वाली है, हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। माँ ने वादा कर लिया है बेटा तू सो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के जन्नती जोड़ा भेजिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर कोने पे मुसल्ला बिछा, पेशानी जमीन पर रख दे, तू दुआ कर, तेरी दुआ में गारंटी है। एक बेटे के हक में एक माँ दुआ करती है, ऐसे उनकी दुआ कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। ये मेरे दोस्त, ईद में कपड़ा तुम बाद में लेना, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दे लेना। बीवी को बाजार लेकर मत न जाना, पहले माँ बाप को कपड़ा खरीद देना। तेरे माँ बाप पहनेंगे, दुआ करेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। माँ बाप क्वालिटी नहीं देखेंगे, खूबसूरती नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मेरे बेटे ने मुझको दिया। आजकल की माँ बहने कभी कपड़ा खरीद के देते होते हैं ना, इनको मार्केट लेके मत जाना, कोई भी अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का सूट खरीदना, ईद में ला के दे देना, अब दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो ना कि मेरी बीवी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है पता कैसे चलेगा। इनको जांचने के लिए इन साल ईद के मौके पे बाजार तुम खुद जा, बीवी को मत ले जा, तू जा कपड़ा खरीद, घर आ, हाथ में दे दे, उसका मुंह देख। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के बोले, ये सब बात छप रहा उस पर। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ईद कपड़े का नाम नहीं है। आज रोजा में जिससे इतना हमारे नौजवान कम नहीं बिगड़ा। हम लोग इलाके में चलते हैं, देखते हैं जवान जवान लड़का रोजा नहीं रखता, जवान जवान है रोजा नहीं रख रहा है। शर्म करो, दिन में तुम रोजा नहीं रखते हो, ईद में नए नए कपड़े पहन के जाओगे, शर्म होनी चाहिए। आजकल इतना बिगड़ा है, जितने कोई नहीं उतना ज्यादा हमारे कौम के बच्चे 12-13 साल में उसको नमाज का ज्ञान नहीं, सजदे का शऊर नहीं, रुकू के तरीका नहीं, नमाज के कुछ मालूम मसला मालूम नहीं, और वो पूरी जिंदगी खाली मोबाइल के चक्कर में पागल है। 10 साल 15,000 का मोबाइल, 12 साल 18,000 का मोबाइल, 15 साल 25,000 का मोबाइल, 15 साल 35,000 का मोबाइल। पूरे कौम उसके बाप सोचना चाहिए कि जिस उम्र में किताब पोथी देके स्कूल भेजने की उम्र है,
कॉलेज भेजना चाहिए, मदरसा भेजना चाहिए, ताकि वो बेटा पढ़ेंगे तो नमाज अच्छी से पढ़ लेगा, वो जब पढ़ेगा तो सजदा अच्छा कर लेगा, वो पढ़ेगा कुरान पढ़ लेगा। अभी तो आप मस्जिद जाते हो, अभी जितने लोग हो 2-4 छोड़ के सभी मस्जिद जाता है, नमाज भी पढ़ता है, तरावी पढ़ता है। सोचो मुसलमानों, पूरे साल आपने नमाज सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखे, ना सूरह फातिहा पढ़े, ना तहियात याद किए, ना दुरूद शरीफ याद रटे, ना दुआ कुनूत रटे, ना दुआ मासूरा याद किए, ना आयतल कुर्सी पढ़े, ना कुछ सूरत याद किए। अभी नमाज पढ़ने जाते हो, सोचो टोपी पहन के जाते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, खुशबू लगाते हो, सुरमा लगाते हो, चलते हो तो लगता है कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। लेकिन तुम खुद अपने दिल में हाथ रख के सोचो कि तुम नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, तुम रुकू कैसे करते हो, सजदे में क्या पढ़ते हो, तहियात कब पढ़ा, दुरूद कब पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ते हो। 10-20% आदमी नमाज पढ़ना सीखा है, बाद बाकी खाली आता गया, नियत किया, अब उसको नियत के बाद उसको मक्का क्या तस्वीर में देखेगा, पंखा देख के आएगा। पूरी जिंदगी में कुछ पढ़ा नहीं। नमाज पढ़ने के लिए पहले सीखना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है। आप पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी पढ़े, ना सुंदर कुरान छुए, ना अम्मा पारा देखे, ना सही नस्ल कुरान पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान देखे, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास गए, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ते हैं, ये ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं, ये उलमा जो स्टेज पे देख रहे हैं, ये लोग सब पढ़े, पहले इन्हें नमाज याद किए, उस्ताद के पास बैठे, मार खाए, 2-4 दिन लगा, 15 दिन लगा, 10 दिन लगा, तब तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ कुनूत याद करने में। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में ना अरबी पढ़े, ना उर्दू देखे, ना सुंदर कुरान छुए, ना अम्मा पारा पढ़े, ना बगदादी कायदा पढ़े, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। ये आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है, जो सब जीन बैठा हुआ है। ये लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है, नियत देखना अल्लाह। अच्छा सोचिए, जब तुम पढ़बे किया तो सोचा क्या, सलाम फिरेगा हजरत, लगता मक्का देखा। कब तक खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, पसीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, मकतब में घुसेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तो मौला कुंतो मौला, मेरे दिल ने बोला, मेरे दिल ने बोला, सहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, चिड़ियों की चहक में, चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कफन पे लिखना, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, क्या नारा, जबान पर अली अली, नमाज पढ़ेंगे कभी। नारा लगाओ जम के, नमाज भी पढ़ो, हजरत मौला अली की नमाज, आज तेरी नमाज। नियत क्या, एक मच्छर काट लिया, इमाम साहब और मोटी है का मोटी खुश है। मौला अली के पांव में तीर लगा था, तीर अंदर छप्पन चला गया, अली के पांव से तीर खींचा, अली चीख पड़ के छोड़ दो, हालत में छोड़ दो, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने मशवरा किया कि अली जब नमाज में खड़े होंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया, अली नमाज में रह गए, सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा, साथी बैठे थे, अली पीछे मुड़ के देखे, कहा क्या बात है तुम लोग बैठे हो? कहा अली आपके पाँव में जो तीर लगा था लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते, सुनो गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में जब डूब पड़ा, नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया तो नमाज में मैं ऐसा डूब गया, ऐसा नमाज में डूबा कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज, क्या आपकी नमाज? देखो मच्छर काट ले तो मोटी दिखाई देता है। मुसलमानों नमाज पढ़ो दिल से,
इबादत करो दिल से, सजदा करो दिल से, रोजा रखो दिल से, कुरान पढ़ो दिल से, माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकतें, परवाज़ मगर रखती है। वलियों के दरबार में जाओ, घूमने के लिए नहीं, दिल से। अभी झूला लगाया है, सब झूलेगा, शोहर नीचे, बीवी झूला, देख रहा है। और वही शोहर मॉल में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, मौलाना रात में तेरी बीवी खतरा में। जो लोग शराब पिए वो का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पेशाब करके पानी करना ले वो का इस्लाम खतरे में हो, जो अपने बेटों के शादी में 5-10 लाख का डिमांड बेटी बाप से करे वो का इस्लाम खतरे में हो, जो अपनी बेटों के शादी में कई हजार का पटाखा फूंक दे वो का इस्लाम खतरे में हो, पटाखे के गोदाम खरीद ले वो का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, अरे मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा, मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। हमारे फकीर नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस नारे तकबीर और सुभान अल्लाह। वलियों के पास जाओ, मानो बाबा से दे रहा है, शर्त है दिल से। दिल जानते हो कहाँ रहता है? अरे दिल जानते हो बेटा, तुम बताओ। अरे दिल देखिए, लड़का 8 साल का दिल का मास्टर, इन लोगों पूछे कहाँ क्या रहा है। हम लोग 12 बजे रात से प्रोग्राम करके जाते ना, जितना 18-19 साल का लड़का मोबाइल दे के बर्बाद है। क्या लगता है आप भी लड़का 12 साल 13 साल जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, स्कूल में नाम हो, मैट्रिक का परीक्षा दे, इंटर का परीक्षा दे, नीट की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, उस उम्र में गेम खेल के शराब के बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है? 14 साल 15 साल उम्र में लड़का इतना बर्बाद, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल होते होते मजनू। पता नहीं हम लोग जब प्रोग्राम करके कभी रात में गुजरना होता है 12-11 बजे रात, तो देखते थे लड़का लोग गली में बैठ के खम्बा पास में पान की दुकान, गुमटी पास, यहाँ वहाँ इतनी रात में कहाँ फोन करता है? कौन है लाइन पे? हजरत आप चाहिए पर्सनल। सोचो, जिस उम्र में पढ़ने की उम्र में बर्बाद हो रहा है, और ये हंस रहे हैं। सोचो, ये हंस रहा है, इनकी बर्बादी की किस्से हम बता रहे हैं, ये हंस रहा है। यही सब लोग देख करके झारखंडी बल हंसाता है। अच्छा, मैं जितनी देर अभी तक बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, इस कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। अब आपके किस्से हम बयान कर रहे हैं कि आप बर्बाद हो रहे हो। आज सोचते हो, कभी सोशल मीडिया खोलते हो, देखते हो इस मोबाइल ने कितना घर को उजाड़ा है, कितने बाप को जहर खाने पे मजबूर किया है, कितने भाइयों को क्या कहते हैं कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया, पता है आपको? इसी मोबाइल के चक्कर में। तुम्हारी कच्ची उम्र है, तुमको कुछ ज्ञान नहीं। कभी सोशल मीडिया खोलो, बेटी का नाम देखना सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान तबाह कर। सोचा आपने? ये मोबाइल से तुम्हारे घर उजड़ रहा है। इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, गलत गलत वीडियो देख देख के पागल। 14 साल 15 साल इन लोग बैठे हो, पढ़े लिखे आप लोग भी हैं समाज में, ये बहुत अच्छा पैगाम दे रहा हूँ। कभी परिवार बैठ के फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम खोलना, परिवार बाप बेटा बेटी देख करके शर्मा जाओगे, इतने गंदी गंदी तस्वीरें आती, फोटो आता है। वो बताओ, ये लड़का तेरा छुप छुप के क्या क्या देखता होगा। अब वो लड़का 12, 15, 18 साल होते होते पागल, दीवाना, मजनू, 20 साल होते होते कान में हेडफोन, घर से खा के निकला, 12 बजे रहते बाहर, बाप घूम रहा है, बेटा कहाँ है, बोले कवरेज एरिया बाहर है। वो लड़का मोबाइल लेके घूम रहा है, कान में हेडफोन लगा के अपने अपने गाना गा रहा, बोल दिल दिया है जान भी दिया। ये दिल है, कौन खेत है, कहाँ दोगे दिल?